امریکی کرنسی کی پاکستان میں بلند ترین پرواز، انٹر بینک میں ڈالر مزید ₹2.14 مہنگا، $202.20 تک جا پہنچا۔ اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوسرے دن مثبت رجحان، 153 پوائنٹس کا اضافہ، 41,731 پر ٹریڈنگ۔ عوام پر لوڈ شیڈنگ کا لوڈ کم کرنے کا اعلان، ملک بھر میں آج سے 3.5 گھنٹے بجلی بند کی جائے گی، 30 جون سے دورانیہ 2 گھنٹے کر دیا جائے گا۔ شاہد خاقان عباسی کی میڈیا سے گفتگو، دوسری جانب لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 16 گھنٹے تک پہنچ چکا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے نمٹنے کے لیے مارکیٹوں کے اوقات کم کرنے پر مشاورت، ہفتے کی چھٹی بحالی کا امکان، مہنگائی، بجٹ سمیت سیاسی صورتحال پر غور کیا جائے گا، الیکشن کمیشن کی سالانہ رپورٹ بھی پیش کی جائے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا آج بزنس کانفرنس سے خطاب، میثاق معیشت کے لیے نیشنل ڈائیلاگ کا آغاز اور معاشی ترقی کے لیے اپنا ویژن پیش کریں گے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا بیان، کہا کاروباری برادری سے بجٹ پر مشاورت بھی ہوگی۔ پیٹرول کی قیمت میں 2 بار اضافے سے ملک مالی بحران سے نکل گیا، وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا دعویٰ، کہا حکومت کا غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹس یا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس منجمد کرنے کا ارادہ نہیں، پرائیویٹ لاکرز پر قبضہ بھی نہیں کیا جائے گا، وزیراعظم جلد کفایت شعاری اقدامات کا اعلان کریں گے۔ ہفتے میں 4.5 دن کام، وزیر دفاع خواجہ آصف کی نئی تجویز، سوشل میڈیا پر بیان دیا کہ اس طرح سڑکوں پر ٹریفک کم ہوگا، تیل اور بجلی کی بچت ہوگی۔ انہوں نے ڈیوٹی کے اوقات کار میں 1 گھنٹہ اضافے کا مشورہ بھی دے دیا۔ نیب ملک کا کرپٹ ترین ادارہ ہے، اس کی موجودگی میں حکومتی معاملات نہیں چل سکتے، لیگی رہنما شاہد خاقان کی گفتگو، کہا نیب بتائے آج تک کتنے سیاستدانوں پر الزامات ثابت ہوئے، سابق چیئرمین جاوید اقبال پر تنقید، مخالفین کو پیغام دیا کہ انتخابات اکتوبر 2023 میں ہوں گے۔ جرمن وزیر خارجہ کی پاکستان آمد، وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے استقبال کیا، العلینا ہیبوک وزارت خارجہ پہنچ گئیں، عمارت کے احاطے میں پودا لگایا، وہ وزیراعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کریں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی منشیات کے خلاف مہم کی ہدایت، سی سی پی او لاہور کو بھرپور اقدامات کا حکم، کہا آئندہ ماہ سے کینسر اور دیگر دوائیں مفت دی جائیں گی، چینی اور گھی کی قیمت میں کمی کی خوشخبری بھی جلد دیں گے۔ بنی گالا ہیڈ واٹر بنا ہو کرپشن کا، اور آپ کی فرنٹ پرسن جو ہے وہ بزدار اور فرا گوگی ہو، جو پنجاب کے عوام کا، صرف پنجاب کے عوام کا حق نہیں کھا گئی، پورے پاکستان کے عوام کا یہ لوگ حق کھا گئے۔ بنی گالا واز دا ہیڈ کوارٹر، فرا گوگی صرف فرنٹ پرسن، بینیفیشریز جو ہے ڈائریکٹ بینیفیشریز وہ عمران خان ہے اور وہ بذریعہ وہ جو پیرنی صاحبہ، یہ صرف ٹپ آف دی آئس برگ۔ اب آپ کو پتہ چلے گا آہستہ آہستہ کہ ایک ایک نوکری، ایک ایک تقرری، ایک ایک تبادلے کے لیے بنی گالا جس کا ہیڈ کوارٹر تھا انہوں نے کتنا پیسہ۔ پی ٹی آئی حکومت میں بنی گالا کرپشن کا ہیڈ کوارٹر بنا رہا، بشرا بی بی کی ہیرا لینے کی آڈیو نقطہ آغاز ہے، مریم نواز کا سوشل میڈیا ٹیم سے خطاب، طنز کیا کہ 70 سال کا بچہ انقلاب لانے نکلا، سپر پاور کو للکارا، اب ضمانتیں کروا رہا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی انتظار کرتے رہ گئے، پی ٹی آئی ارکان اسمبلی استعفوں کی تصدیق کے لیے نہ آئے، تحریک انصاف میں اختلافات، اکثریت حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اسمبلی میں واپسی کی خواہش مند، کہتے ہیں کہ استعفے سیاسی غلطی ہوگی۔ پنجاب اسمبلی ہنگامہ آرائی کیس میں اہم پیش رفت، تمام ملزمان کی عبوری ضمانتیں منظور، لاہور کی سیشن عدالت کا ارکان اسمبلی کو 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے کا حکم، ندیم عباس کی غیر حاضری پر عبوری ضمانت خارج کر دی گئی۔
शान रिसालत में भारतीय रहनुमा की गुस्ताखी, पाकिस्तान का शदीद एहतजाज, सेनेट और कौमी असम्बली में मजम्मती करारदादें मंजूर, अरकान का जुमे को भारत की हाई कमीशन के सामने एहतजाज का ऐलान, पाक फौज का भी सख्त रद्द अमल, कहा भारतीय हुक्काम का बयान इश्तियाल अंगेज और इंतहाई तकलीफ दे है। वजारत मजहबी उमूर के 200 अफराद सऊदी अरब रवाना, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस, वजारत से वजाहत तलब कर ली। फोकल पर्सन का कहना है कि हुज्जाज की मदद के लिए वजारत का कुछ अमला रवाना किया जाता है, मगर खबर से मुख्तलिफ तासुर मिल रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने ड्रिग रोड में आसम फुटबॉल ग्राउंड का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कराची में खेल के मैदान और पार्क आबाद कर रहे हैं। शहर के नौजवान बासलाहियत हैं, इन्हें सहूलत और मौका देने की ज़रूरत है। में आपको सबसे पहले बताएं कि अमरीकी करेंसी की पाकिस्तान में बुलंद तरीन परवाज़ अब भी जारी है। इंटरबैंक में डॉलर मज़ीद ₹2.14 महंगा हो गया है, $202.20 तक जा पहुंचा। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक कामरान चौहान से। कामरान, क्या सूरत हाल है मार्केट में डॉलर की? कामरान चौहान से एक मरतबा फिर रब्ता करेंगे। अमरीकी करेंसी की पाकिस्तान में बुलंद तरीन परवाज़ अब भी जारी है। इंटरबैंक में डॉलर मज़ीद $2.14 महंगा हो गया है, $202.20 तक जा पहुंचा है। कामरान चौहान से हमारा रब्ता बहाल हुआ है। कामरान, क्या अपडेट्स है डॉलर के हवाले से? जी, सबसे पहले मैं आपको करेंसी मार्केट की सूरत हाल से आगाह करता चलूं। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। डॉलर $2.14 के इजाफे के बाद $200.06 से बढ़कर $202.20 की नई मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ने 200 का हिस्सा क्रॉस किया था और $200.06 पर बंद हुआ था। इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी आज तेजी का रुझान देखा जा रहा है। मार्केट 153 पॉइंट के इजाफे से 41,731 की सतह पर ट्रेड कर रही है। गुज़िश्ता रोज मार्केट 262 पॉइंट के इजाफे से 41,570 की सतह पर बंद हुई। जी, कामरान चौहान हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट सामने आया है। कहते हैं कि पेट्रोलियम की कीमतों में एक हफ्ते में ₹60 इजाफा किया गया। गैस 45 और बिजली 47% के इजाफे के बाद भी डॉलर $200 से नीचे नहीं आया। फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत तो गोया नर्सरी के बच्चों को दे दी गई है, जो हर खिलौने को खोल कर देखना चाहते हैं। मुल्क में मुआशी फसादात का खतरा बढ़ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि पेट्रोलियम की कीमतों में एक हफ्ते में ₹60 इजाफा किया गया। गैस 45 और बिजली 47% के इजाफे के बाद भी डॉलर $200 से नीचे नहीं आ सका है। उनका कहना था कि पाकिस्तान की मईशत गोया नर्सरी के बच्चों को दे दी गई है, जो हर खिलौने के खोल कर देखना चाहते हैं। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ने के साथ साथ मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक फैल गया है। लोड शेडिंग के सताए अवाम की नींद भी गारत हो चुकी है। बच्चे और बूढ़े परेशान हैं। शदीद गर्मी में इस्लामाबाद में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे से तजावुज़ कर गया। बिजली की तलब में इजाफा और रसद में कमी के बाइस लोड शेडिंग कंट्रोल से बाहर होने लगी। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल बढ़कर तकरीबन 8,000 मेगावाट के करीब पहुंच गया। शदीद गर्मी में शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे से बढ़ने और रात के वक्त लोड शेडिंग ने आवाम को अजाब में मुब्तला कर दिया है। उधर दही इलाकों में भी सूरत हाल अबतर है। जुड़वा शहरों में अक्सर इलाकों में गैर एलानिया बिजली की लोड शेडिंग मामूल बन गई है। 8-8, 10-10 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। मिनिमम 8 घंटे तो हो रही है, जहाँ तक मैंने हिसाब लगाया। तो कैपिटल का ये हिसाब है, तो बाकी पाकिस्तान का तो अल्लाह ही हाफिज है, उसके बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। एक तो महंगाई ने हमारी बर्बादी की हुई है, दूसरा हमारी नींदें आराम करेंगे, हमें कोई फायदा नहीं है। फिर हम इस मुल्क में रहने का हमें क्या फायदा है। शदीद गर्मी में रात के वक्त लोड शेडिंग ने आवाम का सुकून छीन लिया। खुसूसन बच्चे और बूढ़े सख्त परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल ने इन्हें शदीद अजियत से दो चार कर रखा है। दिन भर कामकाज के बाद कम से कम रात को पुरसुकून नींद की खातिर लोड शेडिंग न की जाए। स्टूडेंट जितने भी हैं वो बेचारे अब पेपर चल रहे हैं, एफ ए के भी चल रहे हैं और मैट्रिक के भी चल रहे हैं। वो बेचारे ना तालीम हासिल कर सकते हैं और ना इस तरह रात को तैयारी भी नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। लोड शेडिंग का पहले एक टाइम टेबल होता है, 3-4 घंटे जाती है, समझ में आ रही है। अब लोड शेडिंग का कोई टाइम नहीं है,
मजदूर आदमी किधर जाए जिसकी 700-800 रुपए दिहाड़ी है। जुड़वा शहरों में बढ़ती हुई लोड शेडिंग के बाईस शहरियों को पानी की भी शदीद किल्लत का सामना है, जबकि मरीजों और बोर्ड इम्तिहानात देने वाले तालिबे इल्म भी शदीद मसाइल से दो चार हैं। शहरियों ने वफाकी वजीर बराए तवानाई खुर्रम दस्तगीर से मुतालबा किया है कि इन्हें अजाब से निजात दिलाई जाए। लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां अकबर एस बाबर इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। चलाया गया और बहुत बुरी तरह से मैनेज किया गया। मार्च की 5 तारीख और अगस्त की शायद 11 तारीख 2021 को हमने लिख के स्क्रूटनी कमेटी की जो कार्रवाई है उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। हमने ये कहा था कि बहुत सारी ऐसी हक़ाइक़ हैं जिस पे पर्दा डाला गया है और ये निशानदेही हम इन राइटिंग कर चुके हैं। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्क्रूटनी कमेटी की तारीफ़ें करता था। जो दो बड़े इम्पोर्टेंट इश्यूज थे जिनको मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज किया गया, उनमें से एक ये थे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 मुलाजमीन हैं, उन 4 मुलाजमीन की निशानदेही, उनको ये इख्तियार देना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फंड्स हैं पाकिस्तान और बैरून मुल्क से, वो उनको इख्तियार दिया कि वसूल किए जाएँ। उसमें इमरान खान का नाम भी लिखा हुआ है, कॉपी 2 इमरान खान PTI चेयरमैन एंड कॉपी 2 डॉक्टर आरिफ अलवी जो उस वक्त सेक्रेटरी जनरल थे। यानी इनकी मालूमात में ये दस्तावेज तैयार की गई, उनको दी गई कि हम मुलाजमीन को इजाज़त दे रहे हैं। स्क्रूटनी कमेटी ने उन मुलाजमीन की तहकीकात करने के अकाउंट्स की इनकार किया। ये वो अकाउंट्स हैं जिसकी मैं पिछले कई सालों से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इन अकाउंट्स में करोड़ों अरबों रुपए आए, मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए आए, हुंडी के ज़रिए आए। उनके मुलाजमीन की निशानदेही मौजूद है, मुलाजमीन के नेशनल शनाख्ती कार्ड नंबर मौजूद है और ये चंद दिनों की कार्रवाई है। ताज़ा तरीन मैंने मौजूदा जो वज़ीर इंटीरियर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उनको भी मैंने ख़त लिखा है और उनको भी वो दस्तावेज़ात दिए हैं कि इसकी तहकीकात कराई जाए FIA से और FBR के ज़रिए। तो आपको चंद दिनों में एक बहुत बड़े पैमाने पे एक गैर कानूनी फेल जो है वो सामने आ जाएगा। दूसरी बड़ी निशानदेही हमने उस वक्त की थी स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से कि उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी, वो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम बैनुल-अक़वामी अकाउंट। आज मैं फिर रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि 6 बैनुल-अक़वामी अकाउंट्स की हमने इस्लामाबाद में अकबर एस बाबर इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।